this time we're gonna have some little different topic, that is a corporate tax planning. Now, why I'm saying it is important? For various several reasons, particularly within the construction sector, particularly within the construction sector and a broader corporate actions. Here are some of the crucial points which I'm going to emphasize on. The first is, when you want to maximize your profit, it's important that you should minimize the tax liabilities. And the biggest example which I have seen in these days, like Paytm failed to do a compliances, and the impact, you can see the stock market price has been fallen down sharply from 1800 listed to 300. So that is where you need to understand, to maximize the company profit, you have to take care of the taxes liability should be as minimum as possible. Because see, overall what happened here is the legal strength of the company matters here, which actually optimize the cost and the expenditure which will gonna be happen in the entire regulations. So it's very important to understand the corporate tax planning, because it optimizes the cash flow. Second, the third is, it helps in making a strategic decision making. So what basically it is, like in where you have to invest, how much you have to de-invest in terms of the paying back any kind of I mean to say, that is your dividends and all. So it's very important to understand why the corporate taxes plays important role, because ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ आपके पास नॉलेज तो है, थोड़ा आइडिया है, लेकिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है ना, आज हम देख पा रहे हैं कि कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बढ़ रहा है, तो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होना चाहती हैं। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में IPOs आते हैं, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ गुड strength of your books is your strength. So at that time it is very important to understand which is important for the future prospect, क्योंकि आप ultimately हर कंपनी का एक विजन होता है कि नहीं, मैं पब्लिक से अपना मैं कब मेरा कंपनी, कब मेरा ब्रांड बड़ा होगा जिससे मैं पब्लिक से पैसा ले पाऊँगा. So that is where you need to understand what are the accounts which you need to follow, what are the books you need to maintain, how it's gonna be look like for maximize the acceptance from the public. So third one which we have studied is about the strategic decision. Next please. And it is always important for this to have a compliances with the laws. So why it is important to comply with the law is to avoid any penalties, any fines which you're gonna have. So it's very important to you have a well structured tax planning is there, and it is also important that sometimes international tax regulations also creates a problem. So obviously corporate tax planning need to be understood before you're gonna start it, because आपको पता ही नहीं चलता आपके 3-4 साल कब पूरे हो गए और कब आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपके पास एक अच्छा बुक वैल्यू होना चाहिए, बुक साइज़ में क्या दिखना है, क्या नहीं दिखाना क्या. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, हम लोग ये सोचते नहीं कि बैंक्स कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए. मैं कुछ दिन पहले यही बात किया था कि बैंक्स आर द रियल mother of all businesses, because those are the one which is gonna help you day and day night. So मैं आपको लास्ट टाइम बताया भी, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वो भले ही अपने सप्लायर्स का पैसा नहीं देंगे, लेकिन बैंक का टाइम आएगा तो 2 दिन पहले अकाउंट में पैसा लगता है. So that is important for them to expand, to buy new things for the business, new machinery, new plants and all. So bank is the only friend for the long term. Okay. The fifth point which I want to highlight is your risk management. See, obviously there was uncertainty will gonna come. So
to be in a planned, well-structured way. The impact of any changes in the regulations or any notices, you will be well planned, and the risk will be minimum in that case. Okay. The next is for investment attraction. See, क्या होता है ना, कई बार हम लोग ये समझ नहीं पाते कि जो टैक्स प्लानिंग है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो ये देखना चाहते हैं कि कितना बेसिकली आपके पास इनकम है, कि आपके उसके डॉक्यूमेंट चीज़ होना चाहिए। जब भी मैंने बहुत सारे चीज़ देखा है कि जैसे आपने बहुत हर्ट किया होगा, जैसे शार्प टैंक्स में बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका प्रोडक्ट्स वगैरह सब पास हो जाता है, लेकिन जब वो नंबर्स में जब वो दिखाने वाली बात आती है तो उनकी बुक्स में वो कुछ होता नहीं है। सो ऑब्वियसली बुक्स स्पीक्स मोर देन द वर्ड, है ना। सो आपकी बुक्स रियली स्पीक्स more about your business, how it is going. And for any investor to invest in your business, they're not gonna see the face, not gonna see the product, but they're gonna reflect into the accounts. So product में दम है, it's okay. For कोई चेयरमैन में पर्सनली स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बुक्स पैरेलली मैच होना चाहिए। Okay. So and then for the last thing which I want to say is for the long term sustainability. So tax planning is very important for long term sustainability of the company. So this is what we are going to be studying on about the corporate tax planning. We'll see that what are the strategies are there to optimize your financial performance. There are so many agencies which actually gives you the rating, like credit rating agencies gives you the evaluation and assigning the grades based on their various financial institutes. So for assistance, just take an example, like AAA grade indicates that there is a high level of credit worthiness. So सारी companies, सारे देशों के ऊपर ये क्रेडिट रेटिंग इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। हमारे देश में किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो क्या देखेगा, क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज़ की रेटिंग देखेंगे। JP Morgan इज़ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दीज डेज। तो आपने सुना होगा शायद। तो कई बार किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं, अब आप बहुत शायद आप वर्ल्ड अफेयर से थोड़ा इंटरेक्ट करते होंगे, जो आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या हो रही है आपको मालूम होगा, तो आपको शायद मालूम होगा कि अडानी की कुछ लास्ट 5-6 मंथ्स पहले एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, एंड उस हिंडनबर्ग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, उसके वैल्यू को ओवर इन्फ्लेटेड बताया, द स्टॉक प्राइसेस गोज लाइक क्रैशिंग इट। सो ऐसा होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्रेडिट रेटिंग किस तरह से रेट करती है, एंड they have a different levels which indicate the confidence to invest into it. So there are so many levels where people used to invest. So similarly, not only the companies but the country itself gonna be rated based upon their strength in the governance. So obviously they're gonna see the stability in the government. So these are the credit rating agencies will gonna see it. We also see the rating of exchange, like exchange trading instrument, like ETFs are there now. We have stocks, we have bonds. These are very crucial for investors. So any positive ICRA rating can impact the investor decision significantly, and it is very important for market penetrations. Pradeep, do you want to say something? प्रदीप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आपकी आवाज आ रही है थोड़ा, मैं सोच रहा था कि आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा, ठीक है। Okay, so when you see there are so many grading of exchange which actually impact the decision in investors, your decisions.
And when the investor will come, see, you need to understand when the big players in the market like Warren Buffett, there are so many foreign direct investors are there. There are DIIs are there, which actually impact on the market. अब आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, एंड इम्पैक्ट इतना है कि वो करेक्शन हमें दिखने लगा है मार्केट में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अभी ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन्वेस्टर्स को रेटिंग कहाँ की फॉल हो रही है किस कंपनीज की. सो दिस रियली इम्पैक्ट द इन्वेस्टर decisions. We will also see that what are the different these public policies are there, like government regulations that helps to for the maintain their credit rating agencies. So it's very important for the ethical practices to be maintained and to ensure that there should be a transparency across every stage, so that the investor will be happy to invest without any doubts. Okay, so government plays a very important role, and it really gives the confidence for the investor to invest in their stock market or any company. So second, the public policy, if you see, it's really impact the market. It really impact the market because any stringent regulation which really enhance the investor confidence, उसको कुछ भी अगर रूल्स लेके आएंगे तो आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली देखिए सेबी ने भी कुछ चेंज किए हैं. एंड सेबी इज, आई थिंक इट्स वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज इन इंडिया. मैं जिस पर बहुत विश्वास करता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स. अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे रेगुलेशंस में, and it's really gonna be impacting directly to the investors or traders and any financial market. So any stringent regulations will like enhance the confidence of investors, and it really helps the market to become stable, क्योंकि मार्केट का एक काम होता है वो ऊपर ही जाने की कोशिश करता है हमेशा, है ना. ओके, so the third point we are going to see here is the transparency and accountability. So there are so many necessary requirements to be there to disclose. Their methodology should be noted down very clearly. This transparency will enable the market to participate, to understand the criteria used for assigning any rating to it. So government ने क्या किया है, basically these credit rating agencies go up with their SOPs, system of approach, where they assign various steps to be followed before they're gonna rate at any company. The next is accountability measures. The government regulations play a vital role in holding the credit rating agencies accountable. Any penalty can be imposed if the agency fails to provide accurate rating. So these are some of the important things which government used to do to maintain the stability in the market. And basically अगर आप इस स्लाइड्स की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जो सिलेबस पूरा आपको डिज़ाइन किया गया है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, इट्स हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट and importance of transparency in the government policies. It will help you to understand the overall impact of the financial market, what are the various roles and similarities of credit rating agencies, how they're going to maintain the their confidence of the investors and make the market stable as much as possible. So these are all things which actually market will like, it's important to regulate it. अब आप देखिए हमारा इंटरनेशनल मार्केट भी है. So this visual elements which you have to work on, like following, you have to make the flowchart visible presentation of the process that impact the financial market.
where you have to symbolize the various government policies, transparencies and accountability. आपको ये लेके आना है, लेकिन हम अपने अगले प्रेजेंटेशन में ये देखेंगे भी. So can you see here? The title is outlining the world financial market. Why it is important to understand what world market is doing. हम लोग कुछ नया नहीं कर सकते. सपोज मेरी बात समझे, यूएस का मीटिंग होता है, अगर रेट कट होते हैं बैंकिंग के तो ऑटोमेटिकली आरबीआई यूज टू कट इट, बिकॉज हम वी आर नॉट बी इंडिविजुअल मार्केट, सो वी हैव टू वर्क एज पर अदर्स आर गोइंग. तो हम बहुत सारी पॉलिसीज़ आप देखेंगे वो हम बनाते हैं ग्लोबल को इन्फ्लुएंस होके, है ना. सो आपको समझना पड़ेगा, कहीं अगर रेट कट हुआ है इन इंटरेस्ट रेट्स पे तो ऑब्वियसली आरबीआई विल गोना वर्क ऑन एंड कट द रेट एज अकॉर्डिंगली. सो it's very important to understand the global financial landscape from and that is very important, that encompasses the various financial market like any institution and instrument. For example, stock market, bond market and their commodity exchange. So क्या होता है उन लोगों के मार्केट में will regularly impact our market also. So there are some key players, institutes such as New York Stock Exchange, Nasdaq, we have Toyota Stock Exchange, obviously Japan का है ये. We have London Stock Exchange plays a vital roles. आप देखेंगे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज भी है हमारे इसमें, जहाँ हमारी जो निफ्टी इंडेक्स है, that is being listed in Singapore as a gift, your Nifty. So आप देखेंगे मार्केट कंपोनेंट्स में बेसिकली there are so many international companies like Apple and Microsoft which has been listed in Nasdaq, so which allows the global investors to buy or sell their stocks. So आप देखेंगे बहुत सारे जगह आप जो FIIs हैं उनको बाय और सेल करने के लिए स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती है. आप डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी ऑप्शंस हैं इन बेस्ड अपॉन ETFs, वो दूसरे मार्केट के जो इंडेक्स है वो खरीद सकते हैं. So there are a platform where you need to understand any change in the global will gonna impact the economy, will gonna impact the price of rupee versus dollar. So there are some key players which we have already said. There are market like Nasdaq and NYSE where actually impact the Indian market a lot, क्योंकि क्या होता है कि इंडियन मार्केट के पास अभी भी वी हैव द बाइंग कैपेसिटी, बट जो इन्वेस्टर्स आते हैं दैट विल गोना क्रिएट जंप इन द मार्केट. सो हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी आर लाइक डेवलपिंग कंट्री and on the regular basis we need to invest on sectors where we have a gap. And why investor will gonna come here? Because we are still developing and we want that infrastructure to be created. So to make that gap fill for the higher rate of return expectation, they come into the Indian market. And obviously it's very important for the government to take the niche steps to regulate that the market should not fall and the confidence of investor remains high. Okay, so these are some of the different market. We have stock exchanges are there, we have currency market where currency are being traded. सभी आप देखेंगे US backed जो डॉलर है, जैसे इंडिया का इंडियन रुपी है, सो जैसे रियाल है, सो डिफरेंट एक्सचेंजेस में भी ट्रेड्स होते हैं. जैसे सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ देयर इज ए इन्फ्लेशन इन द यूरो एंड डॉलर, US dollar, so that exchange plays an important role in influencing the competitiveness in the यूरोपियन एक्सपोर्ट टू US. क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे सपोज इंडिया US का जो डॉलर का रेट है, सपोज अभी 86 रुपीज़ है और रेट 86 से वो बढ़ के 90 हो गया,
सो इंडियन रुपीज़ हमें वही अमाउंट के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा. यस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट कि हम हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो रुपी का वैल्यू है वो कितना मेंटेन रहे. ये इसमें आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान की जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा क्रैश हुई. ईरान का जो बैग करेंसी है वो बहुत क्रैश हुई. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे मार्केट्स के ये सब कंपोनेंट्स हैं जो कि एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं इन्वेस्टर को. स्टॉक मार्केट में अभी देखने से सपोज आप समझे मेरी, दिस इज़ एग्जांपल. जैसे स्टॉक मार्केट में वो आपको हमारी कंट्री का स्टेटस अगर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या प्राइस चल रहा है, कितना नीचे है, कितना होगा, उससे देखेंगे. सिमिलरली जैसे आपके घर में एक हॉल होता है ना, आप हॉल को कैसे सजा के रखते हो हमेशा, वही है कि अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को देखना है या रियली हमें बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज का मेन कंपोनेंट है निफ्टी है, उसको हम हमेशा हाई रखने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ समथिंग वेयर विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि हाँ कि ये एक स्टेबल इकोनॉमी है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. वी कैन ऑल्सो वर्ल्ड जो है वो एक तो स्टॉक्स में एक्सचेंज करता है. वी कैन एक्सचेंज इन द करेंसीज, हम डॉलर या रुपीज़ या यूरो में भी करते हैं ट्रेड्स. वी कैन ऑल्सो ट्रेड इन कमोडिटीज़. कमोडिटीज़ क्या होती हैं, जो हाई एक्सचेंज होती हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ. ओके, एंड दीज आर कमोडिटी एक्सचेंज. सभी कंट्रीज़ की जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है वैसे कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट भी होती है. एंड एग्रीकल्चर जो जितने प्रोडक्ट्स हुए, ऑयल्स हुए, ये सब ट्रेड होते हैं अलग उसमें, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कमोडिटीज़ का प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं. सपोज मैंने आपको बोला था जैसे ईरान है, जैसे आपका वेनेजुएला है, आपका रशिया है, दे आर ऑयल बेस्ड करेंसीज. सो इनके जो करेंसीज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है ऑयल्स का. सो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड इन द कमोडिटी. नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेंड like market trend. Okay, so market trend is also helps in understanding shaping the macroeconomical factors like geopolitical events होते हैं कुछ, and if there is any advancement in financial technologies. So next is how market trends impact the technologies when there is advancement in the technology including like algorithm trading. तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से जो हमारे ट्रेड्स हैं वो मैनुअली की जगह ऑटोमेटेड एल्गो विल गोना टेक प्लेस. सो बहुत सारे एल्गोज हैं जो अब आप देखेंगे कि जो एरर्स जो ह्यूमन एरर्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए एल्गोज आ गए हैं. उनके लॉजिक्स होते हैं, उनके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि जिस पे बेस्ड होते हैं. बहुत सारे ब्लॉकचेन्स होते हैं जिस पे हमें समझ में आता है कि दिस इज़ द लेवल वेयर यू कैन बाय, दिस इज़ अ बाय लेवल, दिस इज सेल लेवल. सो टेक्नोलॉजी रियली इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड फाइनेंस मार्केट. And because of all these things, what happen here is there are too many volatilities there. So there are so many factors that drive the volatility. Suppose कोई ऐसा इवेंट हो गया, अब आपने देखिए इज़राइल और इज़राइल के अगेंस्ट में अभी इज़राइल और हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, दे वर एक्चुअली फाइटिंग ईच अदर फॉर देयर पीस एंड दिस. तो इट रियली इम्पैक्ट द एंटायर मार्केट. मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत समय से ये सब इवेंट्स को लेके मार्केट बहुत ही एक ही जोन में है, वो कंफ्यूज हो रहा है. तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल चार्ट्स आप समझ सकते हैं कि मार्केट कभी ऊपर जाता है, ऐसा लगता है ऊपर जाना है, ऊपर जाने की जगह मतलब वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है. सो देयर आर टू मेनी वॉलेटिलिटी इन्वॉल्विंग इन दीज डेज एंड दिस इज ड्राइव बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल टेंशंस इवेंट्स हैव टेकन प्लेस. रिसेंटली मैं देख रहा था कि कजान एक देश है आपका रशिया में, वहाँ पे हमारे जो बॉर्डर जो आपके डिस्प्यूट्स है चाइना से रिलेटेड. सो देयर वाज अ 1-to-1 मीटिंग विथ सी जिनपिंग एंड
the Prime Minister Modi. So these are the issues which really impact the market volatilities, and it's really impact the interest rate of the central banks in monitoring the fluctuations of the currency markets. Okay, so बेसिकली आप देखेंगे जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो उसका एक पार्ट है ये. ओके, these are the exercise which we used to do it. So what are the role of financial institute in the construction? तो हम आज अब अपने टॉपिक में आ गए हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में. सी ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इज़ ए ह्यूज नीड ऑफ मनी. सो हमें पैसा बहुत चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए. So to facilitate the growth, the financial institute really पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन होते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो बेसिकली रेगुलरली फैसिलिटेट करते हैं पैसे को, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे RBIs हो गए, HDFC बैंक्स हो गए. ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर. क्योंकि जितना भी कैपिटल है प्रोजेक्ट में लगने वाला है वो आपको बैंक बैक्ड होते हैं वो. ओके, सो कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उन्हें लोन चाहिए पड़ता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर मिला किसी प्रोजेक्ट का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट का, सो दे कैन एक्चुअली गो स्ट्रेट अवे फॉर द बैंक फॉर द गेटिंग द मनी. क्योंकि क्या होता है, बैंक को भी दिखता है कि वो उसे बनाएगा, उसको पैसा मिलेगा और दे विल गोना रीपे द लोन विच दे हैव टेकन. सो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे बैंक हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को बेस्ड अपॉन देयर वर्क ऑर्डर या लेटर ऑफ इंटेंट के अगेंस्ट में भी कुछ फंडिंग देती है. सबसे बड़ा तो ये है कि BG बैंक गारंटीज़ होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में लगती हैं. सो उसके लिए भी आपको बैंक जाना पड़ता है, आप कुछ अपने रेपुटेशन के बेस्ड अपॉन आपको वो बैंक गारंटीज़ देते हैं. और बैंक गारंटीज़ के अगेंस्ट में आपको दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको BG आपको सबमिट करनी पड़ेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंस्टीट्यूट दैट इट शुड प्रोवाइड यू द रेगुलर फाइनेंस to maximize the capital need of the any company. The second important thing where it's really important is the risk mitigation. So what I can see for the viability of the project, it's very important that it should be prepared for risk mitigations like financial, like institutional feasibility can be done only when it is backed by finance. क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको पैसा चाहिए रहता है. In the similar way, the contractor, any construction company will secure a loan from the bank to build a new residential complex or any economical activity that will create a job, that will gonna purchase a new material for that. So it's very important for the growth of the company the financial institute plays very important role in risk mitigation and facilitating the growth of the country. There are different types of financial institutes. The first is banking and financial institute. There are you have a traditional banking, okay, where regular deposit, cash deposit and cash exchange will be there. But there are specialized banking are there which really offer you something special like बहुत सारे बैंक्स के पास आप देखेंगे कि एक लोन हाउस होता है हमारा, जैसे HDFC का मैं लोन हाउस देखता हूँ. वो बेसिकली वहाँ से वो लोग लोन फोकस करते हैं कि आपको व्हीकल लोन्स के लिए अलग उन्होंने सेक्टर बनाया है, घर के लिए लोन लेना हो तो अलग दिया हुआ है. सो now these days the bank has become specialized for their particular loans offering like credit facilities भी वो लोग लेके आए हैं. आपने देखा होगा
एवरी बिजनेसमैन वर्क्स ऑन देयर वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग OD भी बोलते हैं, है ना, ओवर ड्यू ड्राफ्ट, जो कि हमें अपने वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो देयर आर सो मेनी कंस्ट्रक्शन फर्म विच टेक द लोन फ्रॉम द बैंक टू परचेज सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टू पे द कॉस्ट ऑफ द लेबर. सो मैं एग्जांपल बताऊं, एक रेस्टोरेंट है सपोज, तो रेस्टोरेंट वाला वर्किंग लोन ले सकता है फॉर देयर रेगुलर परचेज ऑफ देयर items, raw materials and payment of the labor. We also have the government agencies which provide the grants and subsidies at very local interest rate to support the public infrastructure projects. So अब आप देखेंगे बहुत सारे projects गवर्नमेंट के मैं जो देख पाता हूँ, सपोज अगर आपने मुंबई में देखा होगा बांद्रावली एक अपना सीलिंग बड़ा काम हुआ. So they basically been backed by government and बहुत सारी governments जैसे जापान हमें बहुत सारा फंड देता है ना, वेरी इकोनॉमिकल रेट एंड लो इंटरेस्ट रेट. सो हम कई बार क्या होता है कि लो इंटरेस्ट रेट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं. उसका कारण ये है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो जैसे आप घर बनाते हैं ना, एक बार घर बनने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ गोना फिक्स द अमाउंट, तो वो पैसा हमारा वहाँ फिक्स हो चुका होगा, इट इज़ नॉट लिक्विडेबल नाउ. सो एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें या कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करें, इट शुड बी ऑन एज मिनिमम एज लो interest. So we actually highly depend on those countries which actually gives the rate of interest like 1%, 1.5%. So government used to take that loan against the construction, and because these credit agency helps to maintain the confidence of these countries over investors are there. So these agencies also helps the small public projects like for the grants, subsidies and low interest. So अब आप देखेंगे कि मैं जो देख पाता हूँ कि government is really have a cash or a economical crunch there for especially for construction projects. So government is now find a good way to solve this problem in 1990s, where they brought up the concept of BOT, where the public money will gonna be involving in construction of the highways, and with the help of toll collection, that is a system for repayments. So these are the some initiatives has been taken from the government to minimize the impact of financial impact on the government banks. Okay, so it's very important for the government agencies to provide and facilitate the public infrastructure project. Okay, like municipal corporations used to build a new bridges, PWD used to build it. So जो भी आप देखेंगे शहर के अंदर का काम होगा वो आप या तो अपना PWD बनाएगा, जो कॉलोनीज़ के काम होंगे छोटे छोटे वो आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिल्ड करेगा. जो हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, वो नेशनल NHAI AI करेगा फैसिलिटेट. So these are different government bodies are involving for making the projects easier to finance. So next we have a collaboration with the construction companies. If you see the project financing, we have a different financial package tailored for this specific construction project. Just take an example, we can have a consortium of a bank that basically been consorted for the financing of any project, for any major project. Suppose अब मैं कुछ दिन पहले देख रहा था जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया जो आपका टनल है वो, उसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है. These projects are actually projects which actually it's not possible for single entity to work and finance it. So what these bank will do, they come in the consortium of that and they fund that entire project.
The next is with the collaboration of the construction company, they basically minimize the risk of sharing. So collaboration involves like developing the risk shared model where the financial rate are been distributing among the stakeholders. So just take an example for the public-private partnership. The government provides the investors shares and at a particular financial rate and award that construction projects. So with the help of sharing of the risk in terms of financial, where a good model like PPP model which we have discussed. So initially you have seen that Bhopal new railway station has come up with this model where the public partnership has been made by the private players who has a fund who can fund the project, and based upon again their toll system and the rents, they're gonna get the cash back. So visual elements like you have to illustrate the construction projects funded by any financial institute and showcase the tangible outcomes of financial support. For example, imagine a new construction of hospital, bridges or any commercial complex which is funded by the financial institute. So this will help you to understand what are the ways what are the agencies are involving, what are the rate of interest they gonna be taking against the loan. There are icons of the bank building for financial institute, for a construction cranes for the construction project and for the sake for the collaboration. So बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम कोलैबोरेट करके भी काम करते हैं बैंक से. सो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है PPP. यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको लैंड एक पैच दे देती है ना. गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप आप एक स्पेशल व्हीकल बनाइए. स्पेशल व्हीकल में 3 एजेंसीज रहती हैं and based upon that they create a accrual account, and that accrual account will gonna be maintained by all 3 agencies. तो जो भी आप देख रहे होंगे जो टोल कलेक्शन आपका होता है ना, that actually goes to the accrual account and based upon their approvals they'll gonna you can मतलब basically to create a transparency among the contractor who are building the entire facility and the banks to have a clear and transparency in how much money has been come up and what is the expenses and all. So these are the way where government helps him in allocating the land, bank gives you the finance, and the public basically the private player will help him in taking a toll collection, and these all collaborate in the account called accrual account. And these account can only be the release of money can only possible with the help of signing the all 3 agencies. The another very important regulation is SEBI. Obviously S stands for Security and Exchange Board of India. I am very this is something which is very reputed agency of India, and because this plays a very vital role in regulating and overseeing the financial market, and which is really a backbone of Indian stock market. So it's very important that the market should be oversightedly seen, ensuring that there should be a fair practices are there, and all the investors' money should be protected, so that everybody will gonna be. सिर्फ आप देखिए इम्पोर्टेंस इसलिए है कि एज पर द स्टडीज if you see Singapore, if you go to the China market, US market, almost 40% of their people understand, invest in the market. But the economy like India, where the only investor is only 4%. So only 4% actually have understanding how the market runs. So जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, वो सिर्फ 4 लोगों का पैसा है. जब से म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया तब से ये रेट बढ़ा है. सो पॉइंट क्या है मेरे कहने का, दे रहा है. सो अभी तो मैजिक होना बाकी है एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है.
there are a lot many magics will gonna be happen, and this is only possible when we have a strong and reliable agencies like SEBI, which really would really ensure that there must be a fair practices around the corner. And it's very important, it's a duty of a SEBI to that the investor must be protected from the fraud or misrepresentation of the books by the companies, and it happens. देखिए ऐसा होता है कई बार। आप देखिए अभी मुझे याद है मुझे याद है, सोचिए जब पेटीएम का स्टॉक्स आया था वो 2200 रुपये में लिस्टेड हुआ था और एक ही दिन में वो 20-25% टूट गया था। सो मुझे ऐसा लगता था कि जब आप लिस्ट किसी स्टॉक्स को कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एंड सो एंटायर कैलकुलेशन एंटायर थिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसा होगा तो फिर आईपीओ में कौन करेगा, इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। सो दीज regulations are very important to draw down the entire framework of how it's gonna be run to, मतलब आप एक तो सबको मत अलाउ करिए। अब मैं देख रहा हूँ कि आईपीओ छोटी कंपनीज के भी एसएमईज आ रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हैं एसएमईज के जो आईपीओज वो भी आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी टू रिस्की फॉर इन्वेस्टर टू बाय इन अ लॉन्ग टर्म। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, आई हैव द एग्जाम्पल ऑफ ओला। रिसेंटली ओला has launched the IPO, and I have seen the prices has fallen below the starting point of that chain. So SEBI is very important to mandate all the disclosures for the financial information for the company that need to be listed, and it is very important for the safety of the investor to quote accurate data in front of SEBI, and it is also a duty of SEBI to evaluate those data for the making the decision and for the protection of the investors. So how the functioning of the SEBI works? So there are three important parameters where SEBI works for. The first and foremost important thing, they always works for the protection of the investors. SEBI recently takes so many fakes account. आपने देखा होगा फिन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत सारा बैन लगाया अभी। तो ये सब प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि जो टिप्स सिस्टम है ना हमारे इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमें नॉलेज तो ज़्यादा है नहीं स्टॉक्स मार्केट का, लेकिन हम किसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर हैं। सो SEBI हैज़ टेकन द स्ट्रिक्ट एक्शंस विद द पेनल्टी, और ऐसे मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, आप भी यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, एंड देयर आर लॉट मैनी पीपल। सो द SEBI हैज़ टू वर्क ऑन द सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, and these measures are important to ultimately protect the fraud and any manipulation in the market. So SEBI have taken so many actions against the fake fin influencer or anything which is like inside trading. So आपने शायद वो मूवी देखा होगा ना, तो उसमें वो हीरो मोटोकॉर्प्स का कुछ रेट पता करके आता है, तो फिर वो किसी को बताता है। सिमिलरली वे क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग्स भी होती हैं। जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं, वो किसी कंपनी में हैं, एंड दैट कंपनी इज़ गोना बी एक्सपैंडिंग समवेयर, और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसे एग्जांपल मैं आपको सबसे ज़्यादा मालूम होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, क्योंकि अगर सपोज़ किसी के कोई रिलेशन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से, तो वो उस कंपनी के जाके इनसाइडर्स ले सकता है, एंड दैट एक्चुअली ऑल्सो इलीगल इन दिस प्रोसेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को तो याद आ रहा है अभी कुछ चीज़ ऐसा कि जी मार्केट में कुछ जो पैनलिस्ट थे उनको भी बैन किया गया था, एंड व्हेन दे सी द रिकॉर्ड, वो उन्होंने किसी और मतलब मार्केट में बोलने से पहले, टिप देने से पहले कि स्टॉक को इस लेवल पे बाय किया जाए, वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन किसी को दे चुकी होती है जब वो आपको बताते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो दिस इज़ अ फंक्शनलिटी ऑफ SEBI
to look after that the investor should be protected from all the undue influences. The third important function of the SEBI is to develop the market, क्योंकि अल्टीमेटली SEBI का काम बचाना है और प्रमोट भी करना है ना, टू प्रमोट द मार्केट सो दैट द न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल कम, नए नए जो फाइनेंशियल्स हैं वो आएँ, इंडिया से नहीं बाहर से भी आए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट द एंटायर financial market in a very systematic and mechanistical way. So like SEBI has just to safeguard the investor, it's very important. SEBI also introduced some of the derivatives. Like अब आप समझे derivative market क्या होता है. Basically these are the market which are has option to hedge your positions. So derivatives are derived from that mean. Suppose आपको ETF, suppose आपका इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे पास दो इंडेक्स है, कौन कौन सा इंडेक्स है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, राइट. अब हम क्योंकि ये इंडेक्स है वी कैन नॉट ट्रेड इट. जहाँ हम लोगों का एक्चुअल, आप समझे, आपको कैसे बताऊँ, जैसे आपका डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, व्हेन द प्राइस इज ड्राइव फ्रॉम देयर पेरेंट स्टॉक. सपोज निफ्टी है, निफ्टी का प्राइस है सपोज 25,000 रुपये है निफ्टी, है ना, और उसको मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने क्या बनाया, ETFs बनाए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. उसी तरीके से कोई स्टॉक्स है, सपोज रिलायंस के स्टॉक्स है, और रिलायंस में आपके पास काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं रिलायंस के. सपोज आपने 100 स्टॉक्स है, अभी रिलायंस चल रहा है 1700 रुपये एग्जाम्पल, है ना. सो 17 × 10 17,000, 100 करेंगे तो 1,70,000 के स्टॉक्स है. अब क्या होता है कि इसमें एक बड़ा जो कोई इन्वेस्टर है तो कोई 100 तो लेता नहीं होगा. सो अब वही पोजीशंस होती हैं करोड़ रुपए में होती हैं. तो उस पोजीशंस को हेज करने के लिए दिल को ना वाया डेरिवेटिव. सो उसके कॉल ऑप्शंस होते हैं, पुट ऑप्शंस होते हैं, ये सब फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं. ये सारी चीज़ें डेवलप की गई मार्केट को स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि अब आप देखिए कोई भी स्टॉक को आप बेच नहीं सकते, मतलब इंट्राडे कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और मैंने कहा रिलायंस को मैं शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप शॉर्ट लेके नहीं जा सकते, है ना. तो वो शॉर्ट लेके नहीं जा सकते, और अगर मुझे लेके जाना है तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है, डेरिवेटिव मार्केट में. तो मैं क्या करूँगा, रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट करूँगा, है ना. सो वो बेसिकली प्रमोट किया सेबी ने, एक नया पूरा डेवलपमेंट किया जहाँ पे वो अपने डेरिवेटिव मार्केट्स के इंट्रोड्यूस किए. सो विच एक्चुअली विल गोना एनहांसिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड दीज प्रोवाइड अ रिस्क मैनेजमेंट टूल. सो स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट में अपनी पोजीशन, हेज पोजीशन बना लेना भी एक समझदारी होती है. स्टॉक जब गिरने लगते हैं तब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अरे टाइम वेस्ट, अब मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट टूट गया. तो उस समय पे जो आपने डेरिवेटिव्स बनाए होते हैं, ऑप्शंस, कॉल, फ्यूचर्स, वो आपको हेल्प करते हैं आपके जो इन्वेस्टमेंट को सही पोजीशनिंग करने के लिए. ओके. नेक्स्ट जो फंक्शन है सेबी का वो है रेगुलेशन एंड ऑफ इंटरमीडिएट्स, लाइक regular monitoring of the brokers. So SEBI actually set a guidelines for the brokers to maintain that a net worth, to ensure that there should be a financial stability. तो SEBI ने क्या किया, SEBI has bring the concept of brokerage, like broker, and with you can only trade the instrument means stocks. You can only trade the stocks with the help of broker only. अभी ब्रोकर को मॉनिटर करना आसान है ना, एक इंडिविजुअल को मॉनिटर करना प्रॉब्लमेटिक है. सो क्या होता है कि दिस इज समवेयर सम ऑफ द थिंग्स विच गोना फिल्टर्ड बाय माय ब्रोकर एंड इट इज इजी टू रेगुलेट द ब्रोकर बाय द सेबी. सो सेबी ने क्या किया, बेसिकली आपको ऐसा भी तो फैसिलिटेट कर सकती थी ना कि सेबी इज ओपन फॉर द इन्वेस्टर्स,
वो आएँ, और क्योंकि लिस्टिंग तो NSE में हो रही है, BSE में हो रही है, तो NSE BSE में जो लिस्टिंग होती है स्टॉक की, वो डायरेक्टली भी तो आपको सेल कर सकते थे ना, है ना, कि आपने कहाँ से लिया। लेकिन आप देखेंगे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रोकर्स किए जिससे वो बहुत चीज़ें फिल्टर कर पाए, बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट कर पाए मार्केट में। So SEBI monitors and regulate the brokerage firm to ensure that there should be a compliances with ethical standard and investor protection. So what SEBI did for this, they have created a guideline where the broker used to maintain that for the financial stability. Next thing, what to regulate the intermediary, what SEBI used to do. SEBI enforcement action is there. The SEBI has authority to take any enforceable action against entitled for violation of the market regulations. अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं अभी बीच में केस स्टडीज पढ़ रहा था कि पहले आप देखेंगे एक ब्रोकर थे, उन्होंने क्या किया कि जो इन्वेस्टर का जो स्टॉक्स था उसके अगेंस्ट में उन्होंने बैंक से आके लोन ले लिया था कि सर देखिए मेरे पास इतने स्टॉक्स हैं, उसके अगेंस्ट में दैट वाज समथिंग विच इज़ अ वायलेशन ऑफ द regulations. So SEBI imposes a huge fine in that entity who are engaging into it. So it's very important for the SEBI to take a regular action to avoid any malpracticing or any fraudulent in the market. So these are the things. You can also you just go and search about the SEBI logo. Okay. You can also illustrate what are the various SEBI function and how it impact the eco market. You have to depict the SEBI roles in investor protection, development of the market, and intermediary regulations. So these are all things which you can understand with the previous slide. So now this GST, CGST and SGST. So this is also one of the topic in your syllabus which give you the introduction of GST. Obviously the G stands for the goods and service tax. When it is unified undirected tax systems, which are actually replacing a multi-taxing system to make that taxation streamline in the India. So the key component here has been creating the GST, where they mutually decide how much money will gonna be separated for the central. So that comes around central GST, and for the state level, this is how the state will gonna participate. So based upon their state and central, they fix the different GST for themselves, but you have to pay only the GST, right? So depending on the transaction, they're gonna participate into it. तो अब आप देखेंगे पेट्रोलियम में हमेशा में झगड़ा चलता है कि पेट्रोल में CGST भी ले रहे हैं और GST भी ले रहे हैं, तो वो they actually has some considerations in that. Just take an example. I'm gonna how it is for individual, how it is really difficult to understand. Like एक दो तेल होते हैं, एक आप लगाते हैं, एक आप खाते हैं. तो आपको समझना पड़ेगा जो आप यूज़ करते हैं उसका GST का प्राइस ज़्यादा होगा, है ना, और जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं उसमें जो टैक्स लगने वाला कम लगने वाला है. तो एक में 5% लगता है, एक में 12% लगता है. तो जिसको आप कंज्यूम करते हैं, जिससे आप खाना बनाते हैं, उसमें 5% है. जिसको आप लगाते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, उसमें 12% है. So a business selling any good within the same state subjected to both GST and CGST, while interstate exchange includes the IGST. Okay, so how it is going to be impacting the business? Obviously, there are so many taxes in the previous tax. क्योंकि when I was working as a contractor, मेरा भी एक कंस्ट्रक्शन फर्म था जहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेस देते थे, और कम से 7-8 टैक्सेस, मतलब वो पैसा मिलने के बाद हमारे बहुत सारे टैक्सेस वो MB में काटते थे हमारे. स्वच्छता अभियान सेस, अनएम्प्लॉयमेंट सेस, ऐसे करके 7-8 करके सेसेस कटते थे.
एंड वो सब चीज़ें एक्चुअली सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लिया है, दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ GST. ओके, सो दिस GST has simplified the taxing process by eliminating the cascading effects and providing the input tax credit benefits. So अब आपका क्या हो गया कि अब आप लोग क्या करते हैं, आपने जो भी आपके एक्सपेंसेस बताए आपने, है ना, और जो भी आपके टैक्सेस भरे हैं ऑलरेडी, सपोज सही बस को सैलरी आती है तो वो फॉर्म 16 में आपने कुछ ऑलरेडी उन्होंने आपका जो आपका डिडक्शन है टैक्स फ्रॉम सोर्स में किया होता है, और सपोज वो 4,000 रुपये है और आप टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका बेनिफिट है, टैक्स इनपुट जो आपका क्रेडिट है वो आपको मिल जाता है, एंड वो इतना फास्ट होता है कि मतलब आपने आज भरा 2-4 दिन में आपका क्या टैक्स क्रेडिट हो जाए. मतलब चीज़ें सिंप्लीफाइड तो हुई हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल आदमी को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन क्लेम अ क्रेडिट फॉर GST पेड ऑन द रॉ मटेरियल दैट रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन. तो अब क्या होता है ना कि इन्होंने क्या सिस्टम किया कि मैन्युफैक्चर विल गोना पे द टैक्स ऑन रॉ मटेरियल. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसमें उसने पे किया 18% सपोज. अब उस रॉ मटेरियल को उसने प्रोसेस किया, है ना, उसने जिसको बेचा, ठीक है, उससे भी उसने खरीदा, टैक्स लिया. तो अब जो उसने बेचा जिसको, तो यहाँ जो उसने जिसको पे किया, तो वो आप उससे पैसा किससे ले सकते हो, एज अ रिबेट के ऊपर आप ले सकते हो पैसा. सो अभी पहले क्या हो गया, पहले क्या होता था कि पहले मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था. अब क्या हो गया है कि पहले वो प्रोडक्ट जब वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर आता है, वैसे उसमें टैक्स लग के आता है, एंड फिर जो उसके सब्सिक्वेंटली कैस्केडिंग एजेंसीज हैं जो बाय और सेल उसको कर रही हैं, दे विल गोना रिक्लेम देयर टैक्स. सो दिस इज द कैस्केडिंग इफेक्ट व्हिच एक्चुअली यू कैन सी इन दिस. इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर जिस पॉइंट ऑफ टाइम में चैनल ब्रेक हुआ, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंज्यूम. मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज एक फ़ोन, सपोज एक वॉच निकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से. सो मैन्युफैक्चरिंग से जब वो निकली होलसेलर के पास, तो होलसेलर ने टैक्स दिया, जो टैक्स दिया उसने अपने रिबेट ले ली. अब फिर होलसेलर ने हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया हो, तो वो जो आगे जो टैक्स लेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वो एक प्रोडक्ट का कम होगा, तो वहाँ उतने का उसने टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी. तो आगे के लिए जो उसने टैक्स लिया वापस से उसके लिए रिबेट मिल गया. सो दिस इज forthcoming channels which actually helps to minimizes the fraud in the tax collection. So उसके बाद आपने देखे होंगे नए नए आयाम हमारे यहाँ बने हैं कि भैया हर साल टैक्स इतना बढ़ा, इस साल हमें इतना टैक्स आया. तो अब आप देखे होंगे 2 फरवरी में जनरली हमारा टैक्स बजट आता है. तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड मिसेस निर्मला सीतारमन, वो आपको बताती हैं कि कितने इनपुट्स हुए हैं और कहाँ हमारा आउटपुट है. दिल गोना टेल यू एवरीथिंग. जैसे बजटिंग होता है ना, मैं आपको बोला ना बजटिंग. सो हम अपने देश में बजटिंग करते हैं. व्हाट इज़ माई GST कलेक्शन, व्हाट इज़ माई स्टेट कलेक्शंस, एंड विद ऑल दीज कलेक्शन व्हाट इज़ माई एक्सपेंसेस इन द अपकमिंग ईयर्स. तो गवर्नमेंट तो बदलती है हर 5 साल में, लेकिन टैक्सेस का जो है वो हर महीने हर साल उनको बजट बनाना पड़ता है, और उसको वो इन्वेस्ट करते हैं. प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में इतना करेंगे, हॉस्पिटल्स को इतना पैसा देंगे, IITs बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, रोड्स में इतना पैसा देंगे, हमें जो हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उसमें इतना पैसा देंगे, इंटरेस्ट को रीपेमेंट करेंगे इतने का. तो वो पूरा एक उनका बजटिंग रहता है, वो उसमें अब आपको मिलता है. Second, we have a unified tax rate. So basically GST established a uniform tax rate across the states
पहले क्या होता था कि हर स्टेट एजेंसी अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपने हिसाब से वो टैक्सेशन करते थे एंड इससे क्या होता था कि स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट नहीं मतलब पॉसिबल नहीं था. सो टू प्रमोट द स्टैंडर्डाइजेशन now GST established the uniform tax rate for that. Just take an example, a service provider can charge a particular rate for the service, apply the same rate nationwide, ensuring that consistency will be there. Sir, पानी बोल देंगे क्या? Next, जो हम लोग इसमें देखते हैं, there are some challenges and solutions are there. So the first is initial implementation challenges were always there. कब हम कोई चीज़ नई implement करते हैं, so there are so many things which are not being tested, so they're gonna be having of challenges because you need to prepare all the accountants to be ready to file their income tax as per the new GST pro forma. Like adopting a new compliances is always a hectic for accountants, CAs and also for the normal people who do not understand. क्योंकि बिजनेस तो नॉर्मल आदमी कर रहा है, अकाउंटिंग अपने नज़रिए से देख रहा है, बिजनेसमैन अपने नज़रिए से देख रहा है. सो देयर आर सम इनिशियल इम्प्लीमेंटेड चैलेंजेस आर देयर एंड ऑब्वियसली these challenges are experienced really temporary. So there can be a disruption in the supply chain because of that, but with the help of with the slowly and gradually we have come up with that type of challenges and we have now adjusted to the new tax regime. Next we have the government supports and reforms. So government implements reforms and support various types of challenges which will be gonna has come up. So बहुत सारे challenges जो हमारे initial implementation में है उसको address किए गए, उसको refine किए गए और ensure किया गया कि there should be a ease in doing the compliance. अब मैं देख पाता हूँ कि हमारे जो साथ के colleagues हैं वो अपने खुद का टैक्स भरते हैं आराम से, जस्ट बिकॉज कि चीज़ें आसान हैं आज भरना, कि उनके एक्सपेंसेस एकदम फिक्स हैं, उनकी इनकम फिक्स है. हाँ, जैसे अब मैं अपने अकाउंट्स कभी खोल के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 जगह से मेरा इनकम है, उसके कुछ टैक्सेस हैं, उसमें जो टैक्सेस हैं वो अलग अलग हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है. इट्स बेटर टू टेक द CA इन दैट केस. लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है या दो है, सैलरीड है, तो ऑब्वियसली आपको किसी CA की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप अपने खुद के टैक्सेस अपने आप आसानी से भर सकते हैं. सो जस्ट टेक एन एग्जांपल. इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फिक्स करने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, पार्टली जिससे वो सिंप्लीफाई कर सके प्रोसेस को, GST के रिटर्न्स को. And these challenges are being handled very gratefully by the government, and with the help of these networking they provide a simplified and process way to filing a GST. So this is just the introduction of the GST and how it is impacting the business, and while implementing the GST what are the different challenges has came in front of government, and what are the various solutions that brings the that helps in minimizing the challenges, partly by making simplified way to filing of the GST. So what we have, where you have to work on, you have to go to the GST side and identify the GST logo. Okay, you have to illustrate the various impact of GST on the business cost, revenue and compliances. So जो हमने पढ़ा उससे आप क्या समझ सकते हैं? This is basically, now we have a direct tax code system. So introducing a direct tax is serving as a specialized judicial body which actually focus on resolving the dispute related to the taxes important such as income tax. So आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होता कि जब कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई नोटिस आते हैं,
मेरे रिलेटिव्स हैं वो उनका भी जीएसटी फिलिंग का बहुत बड़ा काम है। मैं अभी कुछ 7 दिन पहले उनसे बात कर रहा था, वो ये बताए कि 2019 से 2024 तक 23 तक तो कोई भी नोटिस नहीं आए, लेकिन जो नोटिस 2024 में आना शुरू हुए वो 2019 से उन्होंने दे दिए। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो भी नोटिस जो ऑलरेडी एक्चुअली जो नोटिस आए हैं 2019, 2020, 2021, 22, 23 तक के भी नोटिस आ गए, तो वो जो उनका बर्डन है, जो रिप्लाई है, वो बनाने के लिए सबको टाइम चाहिए। सो अभी धीरे धीरे एंड दीज ऑल प्रॉब्लम्स नीड टू बी एड्रेस इन द डायरेक्ट टैक्स कोड एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता होगा टैक्सेस में। अब आप इसका अगर ऑफिस देखेंगे तो आपने इंदौर में आपने जीएसटी कॉम्प्लेक्स देखा है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। MY चौराहे के सामने एक ब्राइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई है ना, जिसको CGO बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, CGO के नाम से स्पेशली फेमस है। तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको उसका कोड भी मिलेगा। मेरी एक रिलेटिव भांजी है, वो वहाँ कमिश्नर थी, तो मैं इसलिए थोड़ा मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इंडिविजुअल द एंटायर गोल ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड सिस्टम इज कि प्राइमरी गोल इस कोड का यही है कि दे कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली एंड पार्शल फॉर्म टू एड्रेस एनी टैक्स रिलेटेड लीगल मैटर्स। रिसेंटली मैं अभी एक्चुअली आई वाज आस्किंग विथ माई वन ऑफ माई रिलेटिव, कुछ उनका टैक्स का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो इंदौर आके जीएसटी में उन्होंने कुछ इश्यूज थे। एक्चुअली लोग क्या करते हैं ना, वो टैक्स को जिस फिगर में होता है ना, मतलब जिस ब्रैकेट में होता है ना, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 12% के टैक्स रेजिम से उन्होंने नहीं 18% के टैक्स रेजिम से 12% के उसमें भरा था। तो वो जो डिफरेंस है 6% का, उसमें उनको नोटिस आया था। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो जो आप बोलेंगे उसको मान के एक्सेप्ट कर लेगी, फिर आपके टैक्सेस को उसको बाद में की जॉब्स, जैसे इट इज़ लाइक क्वेश्चन पेपर्स, जो आपने पेपर सबमिट किया है उसको मैं चेक करूँगा और फिर उसमें एरर है तो आपको फिर बताऊँगा इसमें एरर है, उसको ठीक करो। सो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, दे एक्चुअली स्क्रूटनाइज द एंटायर योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड दैट individual companies will, if there are any dispute, so any individual or any company is if having any dispute of income tax assessment can approach to the direct court for their resolution। मैंने आपको बताया कहाँ है, हर सिटी के आसपास होता है, इंदौर में है, भोपाल में, हर जगह आपको मिल जाएगा ये, है ना। नाउ बात आती है डायरेक्ट टैक्स कोड सिस्टम की फंक्शनलिटी क्या है, क्या क्या करते हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं। सी दे हैव एक्सक्लूसिवली जुडिकेशंस, लाइक डायरेक्ट टैक्स कोड हैज़ एक्सक्लूसिव जुडिडिक्शन ओवर डायरेक्ट टैक्स केसेस। they actually ensure that there are specialized expert in the tax matter. So any case related to the interpretation of the income tax laws or any dispute over the taxes abilities may fall under this exclusively reviewed by the tax code. So आपको समझना पड़ेगा exclusively जुडिशियरिकेशंस होती हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं और कोई भी मैटर होता है इंटरप्रिटेशन का तो वो टैक्स कोर्ट में हियरिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑयल वही है, एक आप खाते हो एक आप लगाते हो, तो दोनों में जो टैक्स है वो अलग अलग है। सो ऐसा कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन बिजनेसमैन करने की कोशिश करते हैं और उस केस में ये फिर वो वही अगर वो नोटिफाई होते हैं तो फिर दे हैव टू सीक्स द पेनल्टी। अगर पेनल्टी नहीं भरते हैं, चैलेंज करना है तो यू हैव टू गो टू द कोर्ट। मतलब सिस्टम वही है, जैसे कहीं कोई क्राइम किया आपने तो क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे, क्रिमिनल कोर्ट में जाने के बाद में आपको अपीयर हो गया मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट आपको बताएगा कि प्रॉब्लम ये आपने किया है नहीं किया है। इफ़ यू एक्सेप्टेड इट्स ओके, यू विल गोना
go for the judicial custody. If not, you have to again and show some like evidences and clues, documentation that will prove your positions. Similarly इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप जब आपको लगता है कि नहीं ये मैंने मिस्टेक नहीं की, आप कोर्ट के पास अपीयर होते हैं, कोर्ट बताते हैं कि आप अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स करें सबमिट, और जो भी आपकी क्या बोलते हैं दलील्स हैं वो देते हैं, आप कन्विक्शन रखते हैं एंड प्रूफ के केसेस के हिसाब से आपको वहाँ पे अपना डिसीजन मिलता है. सेकेंड इज अथॉरिटीज़. सी द कोर्ट ऑल्सो सर्व्स एज अ applicant authorities hearing the duties over the tax liabilities. So it basically fall under the exclusive preview to the basically अब आप देखेंगे कि court this basically court when it appears against any disclosure made by the any lower tax authorities. Suppose suppose if there is an individual who has disagreed with the decision of the income tax appellate tribunal, they can also appear to the direct court case. So direct tax court में भी आप जा सकते हैं अगर आपके जो एजेंसीज हैं, जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए हैं. अगर आपको ऐसा लगता है they are against the decision. If you are against the decision, they can also appear as their disagreement disagreement in the direct tax court. So the tax court system always work on the transparency of the educating process. There is an open court proceeding where the direct tax court hearings are conducting openly, promoting transparency in the education system. For example, any tax passes or the tax authorities must present in their case of the public forum, allowing for the scrutiny and fairness. So ये सब चीज़ें ओपन प्रोसीडिंग से ये है कि हम ज़्यादा ईज़िली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, बात करते हैं. एंड द सेकेंड थिंग, लीगल एक्सपर्ट इज ऑल्सो बीन ensured to inform and give their legal solid decisions. Take an example, if the judge in the direct tax court possesses a specialized knowledge in the direct tax matter, contributing to the well-informed so for any legal expert, there are some of the judges where they basically take the help of any advices from the experts. So this is basically you need to work on how the courtrooms will appear. You can also draw some court judge rooms where the legal procedure are engaging in tax disputes. आप YouTube में जाके इसको बहुत clearly देख सकते हैं. You can also symbolize the representation of the judgment with scale, emphasis on fairness and impartiality. So these are the something where you can work on based upon the previous slide. Okay, so with this we have come across the entire detail of how the corporate tax. We have seen GSTs, we have seen IGSTs, SGSTs, and various agencies like SEBI. We have also seen our financial market, world market also. So I think these are some of the introduction which plays important role in understanding that nobody is individually works, everybody works globally. Any steps or any event happens will gonna impact the market, governments, and there are so many agencies are there which I regularly monitor and make the investor protected in the market. So
we have lot to know in this furthermore, and with this I am going to close the presentation. If you find any difficulties, I have also circulated the banks, question bank, which is very useful for examination and in realistic life also. If you find any difficulty, you can take any, you simultaneously can choose based upon your roll number, you choose one after the other. I am okay if you do 2 or 3 questions in every module, I am okay, but do it in the rigorous frame so that you can learn. At least मैं आपको चाहता तो सबको सब सारे असाइनमेंट बोल सकता था, लेकिन my intent here is to not to overburden you. मेरा इंटेंशन ये है कि आप भले ही आप 2 करिए क्वेश्चंस हर मॉड्यूल से, बट उसको इतने अच्छे तरीके से करिए कि आपको कुछ लर्निंग हो अल्टीमेटली. ओके, सो इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी इश्यूज, यू कैन टॉक टू मी राइट नाउ. श्रुति. सर जो क्वेश्चन बैंक्स ये क्वेश्चन बुक रेफरेंस के साथ Okay, so you are in an IPS library right now, है ना? And you cannot find that book in the library. So you may talk to the librarian to ask for that book first. And okay. So what I'll do, I will check my database. If there any book PDF is there, I'm gonna share you with all. क्योंकि वो बुक्स मेरे पास होंगी, और नहीं होगी तो मेरे पास ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे जो अलग अलग जो ओपन सोर्सेज हैं, वेयर आई कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड आई एम गोना सर्कुलेट टू यू. ओके, सो मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, आई एम गोना डू इट. अगर आप लोगों के पास, अगर आप सर्च करते हैं एंड इफ़ यू फाइंड इट समवेयर, प्लीज़ सर्कुलेट इट टू मी एंड विथ योर फ्रेंड्स. हमने यहाँ बात किया वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट की. सी, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे स्टॉक्स एक्सचेंज होते हैं. जैसे स्टॉक मार्केट के लिए आप देखेंगे NSE है, अपना BSE है. आवाज़ कम कर लेंगे क्या अपने श्रुति? ओके, सो हमने देखा था ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल मार्केट में वी हैव अ वेरियस कंपोनेंट. द फर्स्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस, जहाँ स्टॉक्स, जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो ट्रेड होते हैं. उसी तरीके से जो हमारी करेंसी है, जिसको हमने फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, जहाँ हमारी करेंसीज ट्रेड होती हैं. US डॉलर भी ट्रेड होता है, यूरो ट्रेड होता है, मतलब जितनी भी देशों की करेंसीज हैं वो ट्रेड होती हैं. ओके, सेकेंड. थर्ड हमारा कमोडिटी मार्केट है, जैसे जहाँ ऑयल्स हैं, गोल्ड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होती हैं. और अब आप जब देखेंगे ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करती हैं. अब क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि आज हम लोग जो भी ये ट्रेडिंग करते हैं, जो भी सेल और परचेज करते हैं एक्सचेंजेस में, जो हमने 3 एक्सचेंजेस हैं, दे आर नाउ बिकम टेक्नो सेवीड. नाउ देयर इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब हम लोग मैनुअली ट्रेड नहीं करते. वी ऑल्सो हैव टेक द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग which actually increase the punch of buy and sell. So बहुत सारे blockchains institutions हैं जो बहुत तेज़ी से आते हैं, मार्केट को गिराते हैं, प्रोसेस बुक करते हैं, चले जाते हैं. सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की पोजीशंस होती हैं. आप लोग मतलब कभी आई डोंट नो आप लोग कितने ने देखा है, जैसे अगर कोई स्टॉक ब्रोकर के पास जाके देखेंगे उसका वॉल्यूम एक स्टॉक्स का, तो आप देखेंगे करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक दिन में हो जाता है वर्चुअली. पता नहीं चलता किससे लिया वो स्टॉक, किसको खरीदा, है ना. सो एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हाउ द टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग. एंड जब बिकॉज दीज एक्चुअली रिलेट्स टू द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. क्या होता है कि जब हमारे पास मशीन्स आ जाएंगी काम करने के लिए, और जो आपका एल्गो है, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स बना हुआ है, जिसके बेसिस में कोई भी स्टॉक ट्रेड होगा, सेल होगा या परचेज होगा, या आप उसको सेल करेंगे या बाय करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट क्रिएट्स अ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट.
अभी आप देखेंगे अचानक से नीचे जाएगा मार्केट, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज the trend of the market is changing, and now the AI and algorithm are taking place their order from manually to the automatic. Next please. तो पहले तो हमने पढ़ा कि कैसे वर्ल्ड, नेक्स्ट पेज, कैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है। हमने यहाँ देखा कि ये सब चीज़ों को मार्केट रेगुलेट कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें पैसा देते हैं फॉर द ग्रोथ एंड रिस्क मिटिगेशन के लिए। हमने बात किया कि कैसे बैंक, आपने देखा होगा आरबीआई का जो टैग लाइन है वो क्या है? इट इज़ अ बैंकर्स ऑफ बैंक। तो बैंक को फंड करने वाला आरबीआई है, तो वो ऐसी पॉलिसीज़ निकालता है, ऐसा सेट ऑफ रूल्स रखते हैं कि जो बैंक्स है वो अपनी मनमानी ना कर पाए। अब आप देखिए रिसेंटली पेटीएम को बैंक शायद लाइसेंस मिल गया है आज या आज कल में। वो पेटीएम का स्टॉक देखिए भागा चला जा रहा है, वो 300 तो फिर 700 रुपये हो गया। ये आप देखिए ये इम्पॉर्टेंट है किसी, हाँ, और उसी बैंक ने उसके ऊपर साल भर पहले पेनल्टी भी लगाई थी जिसके कारण स्टॉक गिरा था। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रियली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑफरिंग द लोन्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो, अब आप देखें गवर्नमेंट एजेंसीज़ with the help of banks, institution and as well as PPP मॉडल के बेसिस में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडरटेकिंग बहुत सारे लोन्स मिलते हैं। दे बेसिकली कोलैबोरेट with the various agencies involving in the project like client, consultant, contractor, bankers. अब आप समझिए अगर सपोज किसी कंपनी को ने सोचा कि मुझे एक IPO लेके आना है ना, तो वो किसके पास जाएगा? वो NSE BSE के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? हाँ, कोई आइडिया किसके पास जाएगा? वो बैंक के पास जाएगा। बैंक बैक्ड रहेगी उसकी कंपनी। मतलब क्या बोल रहा हूँ, सपोज उसको 100 करोड़ का एक वो लेके आना IPO, और जब तक उसमें बैंक, सपोज आपने लिक्विडेट कर दिया 100 करोड़ का, अब खरीदने वाला कोई है ही नहीं है, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी लेकर कोई नहीं खरीदा तो मैं आपके स्टॉक खरीदूंगा। So it is very important for banks to for any financial institute really plays very important role in construction sector as well as the financial sector. Next please. Next. And above this everything has been regulated by the SEBI. ये SEBI क्या करती है? सारे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, सारे ब्रोकर एजेंसीज को रेगुलेट करती है। इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उस फ्रेमवर्क में उन लोगों को काम करना पड़ता है, नहीं करते तो उनको पेनलाइज किया जाता है, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। क्योंकि अल्टीमेटली इनका गोल क्या रहता है? इनका गोल रहता है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करें, मार्केट को प्रमोट डेवलप करें, और अपने जो सब्सिडरीज जो इंटरमीडिएटरी एजेंसीज़ हैं उनमें ये अपना कमांड और होल्ड अच्छे से रखें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अब वी नेक्स्ट इन द सिलेबस वी हैव अ GST, CGST, SGST, जो कि शायद आप इसके साथ में थे, जहां हमने देखा कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस, मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस करके उन्होंने एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लेके आए, जिसका इंटेंशन ये था कि हम सिंप्लीफाई कर सकें हमारे टैक्स के सिस्टम को, जिसके कारण से जो पुराने टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम थे उनको, जो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट ख़त्म कर सके, एलिमिनेट कर सकें, और मैन्युफैक्चरर्स को अपने क्लेम्स के लिए एक इजी फिलिंग हो, इजी प्रोसेस हो, और जो रेट्स हैं वो सबको इक्वल, मतलब वो एक्चुअली चाहते ये थे कि जो भी हम करें उसको इतने सिंप्लीफाई कर दें कि एक लोकल वेंडर, बिजनेसमैन भी उसको आराम से अपना फिल कर सकें। फर्स्ट, सेकंड, दूसरा क्या था? देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट अराउंड अक्रॉस द कंट्री, वन नेशन वन टैक्स। सिंपल कि भाई कोई भी अगर आप प्रोडक्ट सर्विसेज ले रहे हो, तो आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि दिल्ली में जाओगे तो आपको सर्विस टैक्स अलग लगेगा, GST अलग लगेगी, इंदौर में खाओगे तो अलग, लेकिन पहला था ये
ना दिल्ली में आप जाते थे तो वहाँ पे जो आपको सर्विस चार्ज 5% लेते थे, इंदौर में 3% लेते थे। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो हटाने के लिए उन्होंने एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम लेके आए, जिसके कुछ चैलेंजेस थे। जैसे हमने देखा कि इनिशियली एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बहुत सारा आपने देखा होगा पॉलिटिकल इशू भी कितना बना। लेकिन किसी चीज़ को चेंज करने के लिए एडॉप्टेशन में टाइम लगता है। अगर हम जिस दिन नए घर भी जाते हैं, सपोज आपने अपना घर चेंज किया, तो ऑब्वियसली आप कितने एडजस्टमेंट करते हैं, आपको मालूम नहीं होता है कि पंखे का बटन क्या है, लाइट कहाँ से जलेगा, मोटर का पानी कहाँ से आएगा, कोई कंप्लेंट तो किससे बात करना पड़ेगा। इट्स हैपन। सो बट विद द टाइम दे हैव फाउंड आउट द डिफरेंट वेज टू clear all the issues related with the filing the GST, and with the help of support and the various reform, we have now entered into the highest level of recovering of the GST. अब हम लोग हर साल बोलते हैं कि ये बार हमारा हाईएस्ट रिकॉर्डेड GST कलेक्शन है। तो ये छोटे छोटे रिफॉर्म्स के कारण ही ऐसा हो पाया है। एंड इंडियन इकोनॉमी को अगर बेहतर बनना है ना, तो मैं 2-3 चीज़ें मुझे लगती है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकेंड हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड GST कलेक्शंस, टैक्स कलेक्शन, इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होना पड़ेगा, डायनेमिक होना, हमें पता, क्योंकि हमारे इश्यूज़ बहुत अलग अलग हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अब मैं आपको बताऊं, एग्जांपल बताऊं, रिसेंटली HDFC बैंक परेशान है कि हम कैश कहाँ से लेके आए। क्योंकि मैं अभी अपने बच्चे का अकाउंट खुलाने गया था, तो वो बोले कि आप 5 लाख रुपए का इनिशियल खुलवाते हैं तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ के नाम से आपका वो दे देंगे, अकाउंट नंबर, लेकिन आप वो पैसा वापस यूज़ कर सकते हैं। सो मतलब दे आर रियली इन अ कैश क्रंच। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हमारा जैसा अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है ना, आज के जो लोग हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द सेविंग बट दे फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग, है ना। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक रिच मैन का जो अकाउंट स्टेटमेंट आपको कैसा दिखेगा और एक पुअर मैन का अकाउंट स्टेटमेंट कैसा दिखेगा। पुअर पीपल जनरली सेव द मनी, वो सेव करते हैं, सेव करना अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट जब हो जाता है जब आप किसी चीज़ को ओवर सेव करने लग जाओ। तो आजकल लोग बाग क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट एंड व्हाट रिटर्न दे विल कलेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दे एक्सपेंस देम। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट okay, obviously when there is some changes, there always a reform that also need to be done in the court system. कोई disputes होता है, so entire focus is on resolving the disputes related to tax. मैंने आपको बताया ना कि 12% उसमें applicable tax 18% होता है। बिजनेसमैन अपनी स्मार्टनेस और मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको 12% बढ़ता है। और फिर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो फिर वो एंड कन्फ्यूजन हो जाता है ना, ऐसा हो सकता है, वो पेनल्टी करता है, लगाता है, फिर वो कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि ठीक है ये कई बार वो छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा होगा 19 से 22-23 तक मैं जो फील कर पा रहा हूँ, टैक्स के कभी भी नोटिस नहीं आए। 2024 में इतने नोटिस आ रहे हैं कि पूछिए मत। तो मैं उसको फील मैं समझ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ एक्चुअली चीज़ों को। सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ टैक्स सिस्टम is to minimize the disputes, and first to minimize the dispute, second is to have a transparency and the clarity in the system, entire process. The last, it is always important to give them the expert advice to the applicants. So we have now understood that in this market, it's important. The 3 parameters are very important. First is collection of the taxes. Second is financial institutes like banks. Third is your stock market in which the equity has been traded, in which the currency has been traded, in which the commodity has been traded. So
and this is only possible when you have a robust system. Okay, so with this I am just be leaving you, and if you find any doubt you can WhatsApp me after that. And I have also shared the presentation. मैंने आप लोगों से presentation share कर दिया है in the opening only, right? है ना? और जो असाइनमेंट किस अकॉर्डिंग आपको देना है? मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, उस क्वेश्चन बैंक्स में केस स्टडीज भी हैं आपकी। जी सर। अच्छा, आप उसको देख ही लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होता है उसमें तो फिर आप मुझे बताइएगा। सो दैट क्वेश्चन बैंक ऑल्सो इंक्लूड्स सम ऑफ द course related questions, some of the practical questions are also been there, which is going to be very helpful for you. And there are third that are like case studies will also be given in that. So you can go through it. If you find any difficulty, you can come back and you can WhatsApp me, right? कई बार मैं कॉल आप लोगों का नहीं ले पाता हूँ, I can understand because मेरे पास ऑलरेडी दूसरे कुछ एजेंट्स होते होंगे काम के, इसलिए नहीं उठा पाता हूँ। तो it's good to message me when I'm gonna free. I'm gonna reply you back. Thank you for your patience, and we'll meet you next class on Thursday, same time, right? Thank you.